Hello students, this is our second class of accountancy of class 11th with the chapter number 1 part 2. So we will start this chapter with the topic of objectives of accounting. There are 4 objectives given. Ascertaining profit or loss means profit or loss certain नहीं होता है, means कोई भी fix नहीं है. It means ये fix नहीं है, ascertain है, कितना भी profit भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा loss भी हो सकता है. नेक्स्ट वन असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल पोजीशन भी असर्टेन है. फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स पोजीशन ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियली कितनी एक्टिव है. इज इट क्लियर? फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. मैनेजमेंट प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी टू द मैनेजमेंट. नेक्स्ट वन प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स. यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए. नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. देयर आर सम एडवांटेज गिवन. फर्स्ट, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस. बिजनेस की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए. असिस्टेंस टू मैनेजमेंट. असिस्ट करना मीन्स मैनेजमेंट को असिस्टेंस देना, उनका वर्किंग प्रोसेस प्रॉपरली हो इसलिए. रिप्लेस ऑफ मेमोरी. मेमोरी को रिप्लेस कर सकते हैं. रिप्लेसेस मतलब कि मेमोरी को हम रिमाइंड में रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट वन, फैसिलिटेटिंग कंपैरेटिव स्टडी. हम इसके रिलेटेड कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं. कंपैरेटिव स्टडी ऑलवेज completed by the charging of tax over the profit or before tax charging over the profit. These are activities. Facilitating settlement of tax liability. Those liabilities paid for the tax in face of tax, it is also settled by the accounting. Facilitating loans. Loans facilitate कर सकते हैं. Evidence of in court means in accounting के process से we are having some records, so we have to prove in the court with these evidence also. Assistance in the events of insolvency. There are two types, solvency and the insolvency. Solvency, those persons able to pay the liability, and insolvency means those person not able to pay the liability. Next one, helpful in settlement of accounts. Accounts को settle करने के लिए it is very helpful. See the next one, limitations of accounting. First is it is not fully exact. It is एस्टिमेटेड. मीन्स ये एस्टिमेटेड होता है, ये फुली एग्जैक्ट पे नहीं डिपेंड होता है. फॉर एग्जाम्पल वी परचेज अ मशीन, सो वी डोंट नो कि हाउ मच लाइफ इट्स हैविंग, मतलब उसकी लाइफ कितनी है. फॉर एग्जाम्पल यू परचेज अ मोबाइल, सो यू एस्टिमेटेड ना कि ये 2 साल चलेगा और 3 साल चलेगा. क्लियर? तो लाइक हमने एस्टिमेट लगा लिया कि कितना चलेगा. एग्जैक्ट कितना चलेगा दैट वी डोंट नो. ओके, लाइक दिस वे बैड डेब्ट्स ऑल्सो. मार्केट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दोज स्टॉक लेफ्ट at the end of the year. Next one is it ignores the qualitative elements. qualitative elements को ये ignore करता है, means quality नहीं देखता है. accounting जो है quality पे depend नहीं है, ये quantity पे depend है, means amount पे depend होता है जिसको हम count कर सकते हैं, ना कि quality पे. like quality of management, labor force, and industrial relation, public relation are ignored in this section. Next one is it ignores the effects of price level changes. Price level changes it's also ignores, means price level क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है, पहले बढ़ा हुआ था या अब इंक्रीज हो रहा है. it doesn't matter for the accounting. it's totally ignores by the accounting features. नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग सिंपल मीन्स इज मैनिपुलेटिंग ऑफ अकाउंट्स. मीन्स अगर हम कुछ भी मैनिपुलेट करते हैं, अकाउंट्स में कुछ फेर बदल कर रहे हैं, मीन्स अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए, कि अगर हमको टैक्स बचाने के लिए कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ रहा है, तो इट इज़ अ फैक्ट, लाइक इट इज़ अ विंडो ड्रेसिंग. इसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं. Next one is systems of accounting. There are 2 systems, double entry system or single entry system. These 2 types already given in your syllabus in this year. So you have to know about the double entry system and single entry system. Meaning of double entry system is which transaction recorded 2 sides. 2 sides means one is for debit, one is for credit. It is recorded in 2 sides. So this is the double entry system. एंड नेक्स्ट वन, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आप देख सकते हैं कि जैसे कि 2 एस्पेक्ट्स हैं, रिसीविंग ऑफ गुड्स और पेइंग कैश. मीन्स बिहाफ ऑफ कैश वी हैव टू रिसीव द गुड्स, मीन्स गुड्स आए और पैसा गया. देयर आर 2 सेंस ना. पहला तो गुड्स के आने का ट्रांजेक्शन और पैसे के जाने का ट्रांजेक्शन, मीन्स 2 रिकॉर्डिंग हुई. सो इन डबल एंट्री सिस्टम वी हैव टू रिकॉर्ड एवरीथिंग इन 2 टाइम्स, 2 साइड्स और द 2 टाइम्स. Next one is single entry system. Single entry system basically
it is called a incomplete record, means it is not completed because it's recorded only a single cells. ये हमेशा एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट भी कहा जाता है. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देर आर टू बेसिस, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस. कैश बेसिस मीन्स अकाउंटिंग, ऐसी अकाउंटिंग विच आर टोटली बेस्ड ऑन कैश, मीन्स अकाउंटिंग जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो टोटली बेस्ड ऑन कैश हो. और accrual basis they are having both sense, means cash basis also, credit basis also. So cash basis means only cash transaction recorded, but accrual basis cash and credit both transaction recorded. Next one is basis of cash accounting, means one example given, income is recorded when cash is received. इनकम रिकॉर्ड होगी जब कैश रिसीव होगा. बेसिकली जब हमको कैश मिलता है तो हमारी इनकम होगी. फॉर एग्जांपल हमने कैश रिसीव किया, सो इट मीन्स हमारी इनकम हुई. सो कैश बेसिस है, पैसा आया तभी तो इनकम हुई. क्लियर. नेक्स्ट गिवन, एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन कैश इज पेड आउट. अगर हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं कि रेंट पेड, हमने रेंट दिया तो कैश जा रहा है, इट मीन्स पैसे के बेसिस पे ही काम हो रहा है. नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ कैश बेसिस अकाउंटिंग. एडवांटेज दे रखी है यहाँ पे, इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं. सो सी, इट इज़ सिंपल एज एडजस्टमेंट एंट्रीज आर नॉट रिकॉर्डेड. इसमें जो है कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्डेड नहीं होती है, सिंपल होती है. नेक्स्ट वन इज दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेटेड एंड जजमेंट रिक्वायर्ड. इसमें थोड़ा सा ही जजमेंट चाहिए होता है क्योंकि हमको पता है पैसा जा चुका है, कोई भी इशूज़ है नहीं, पेमेंट हो चुका है. नेक्स्ट वन इज़ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सुटेबल फॉर द इंटरप्राइज, बिकॉज इंटरप्राइज में जब भी कोई चीज़ फेयर पे होती है, मीन्स बिल हमको मिल गया, कैश पेड हो गया, तो कोई लोड नहीं है, मीन्स पैसा रिसीव हो गया और हमारा पेमेंट हो चुका है, प्रोडक्ट हमको रिसीव हो चुका है. सम डिसएडवांटेज ऑल्सो गिवन, लाइक इन दिस सेक्शन फाइनेंशियल पोजिशन मीन्स फेयर प्रॉफिट और लॉस हमको कभी भी पता नहीं लग पाता है. फाइनेंशियल पोजीशन को हम इसमें इग्नोर करते हैं क्योंकि इसमें फाइनेंशियल पोजीशन में इसमें हमारे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जुड़े होते हैं. आउटस्टैंडिंग मीन्स दोज आर लेफ्ट फॉर पेमेंट, जो अभी भी पेमेंट के लिए बचा हुआ है. और प्रीपेड मीन्स जो हम पहले ही पे कर चुके हैं. प्री पेड मीन्स प्री मतलब जो पहले और पेड कर चुके हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज़ एक्रूअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो. एक्रूअल बेसिस में हमको ये भी पता लग जाता है कितना कैश आया है, कितना कैश बाहर गया है, आउटफ्लो. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. दिस इज़ अवर सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1. सी द नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो.